discuss a very crucial topic yet very common amongst us. So in this wellness series, we are going to take up the women menstrual hygiene as a very crucial topic today for discussion, and we are going to talk about the age group, which is somewhere around 12 to 14 years when the females get on the the journey of menstruation. They start with menstruation, and which prolongs for almost 30-35 long years, and the menopause comes around somewhere around 40-45 or sometimes beyond it. So here we are going to talk about the common concerns that we are going to face for almost 3.5 decades. What are those? What comes to your mind when you think of the common gynecological problem which you might be facing for so long, and probably you couldn't manage to visit your gynecologist, or you were shy to discuss that with your friends and family? So one or two which is very common is, one is the vaginal itching. Aren't they very common? Didn't you face those problems in your lifetime? Yes, of course. Then the second is the rashes, which comes post the periods are over. Very common. We as a doctor get to hear this very common in our clinic, that doctor, I have used my sanitary napkin and the periods are just over, and now I have ended up with a bad rash. What to do? The third thing that I guess almost all the female would have faced is painful menstruation, dysmenorrhea. Why it is happening? Sometimes we say that post certain age or post certain stages of your life, this would be over, but I don't see that getting over even after certain stages that you would have heard from the doctors or from the experts. What are the reasons and how we can control it? Another thing that you would have seen female, or probably some of you would have faced in your life, is the periods are not falling in the regular place. The dates are not regular. You don't know when to expect them. Sometimes they come before the due date. Sometimes they are so much delayed that probably you end up having one menstrual cycle in 2 months' time. Aren't this a cause or worry for all of us? Yes. So I am taking up this very common concerns amongst all of us today, and while we discuss this, we are going to elaborate on the menstrual hygiene. A common thing that we would have always heard regarding menstrual hygiene is that one need not use clothes because those are unhygienic, very messy, very difficult to maintain hygiene using in a long run. So now when we talk about leaving clothes, what are the common options that is available in the market? Yes, of course, the disposable sanitary napkins. You have n number of brands available in the market, but over the period, that disposable sanitary napkin got launched in year 1998 in India, and almost after 2 to 3 decades, we are still with the same concept that these are the best that we could afford. But I am here to burst this myth, and I would show you the live demo how these myths are built, how we never checked into the reality, and what are the things that are of concern that need to be sorted. First and foremost, while we talk about the sanitary napkin, let me show you one of the very common sanitary napkins that is available in the market. So I'm just taking an example of a sanitary napkin which you would have seen in your day-to-day life, and the packets that are available in the market that you probably would have used. Now, taking this sanitary napkin, I would like to open it layer by layer to demonstrate what are the various things. So I will just put my focus on the sanitary napkin only. Here is my sanitary napkin. Now when we talk about this kind of a sanitary napkin packet, once you open this sanitary napkin packet, there is no provision to actually close it again. Now consider the kind of lifestyle and the kind of population that we have. Most of the rural population or most of the female do not have a basic amenities to store it in a very hygienic place. So where they put these napkins? Probably in the washrooms, probably in the cupboards, or sometimes in the purses, which we never disinfected. Now considering that these are the sealed pouch, I would like to tell you how much these seals are reliable. So if you see, I can really insert my finger inside. So if one person can insert the finger, of course, the microbacteria, the microorganism are very likely to be settled on this particular napkin. Now taking it further, I'm opening up this particular sanitary napkin which you have been using for decades altogether and placing it on a tray to demonstrate how it exactly happened, how the vagina feels, how we react to the sanitary napkin.
Now on an average, an Indian female is likely to bleed somewhere around 40 ml to 80 ml. So now considering this is an XL size of a napkin which fits in to all the females, of a regular of a regular or XL size. For a female who have a very high waist, or probably for the maternity, we have different sizes that are available in the market. So these are the regular napkins. Now when I have taken water which is colored in blue so that you have a real visibility of this entire process, since I said that 60 ml is the average bleeding, this is 25 ml syringe which I have filled in before. The bleeding happens in a very slow process. Mostly while we are bleeding, the center area of the napkins get wet. So over a couple of hours, this is how we will bleed. And this is how the napkins would appear. Just for the demonstration, I am doing a uniform scattering of this water. Rather, in real, only the center portion are mostly wet. But let's consider for the quick access, this is 125 ml done. I am taking the second syringe of 25 ml again. So here goes the second 25 ml, which will make it 50 ml. Almost around an average bleeding. Now if you look into the surface of this particular napkin, the colored water is very much visible. But what we needed to understand, how much is the capacity of absorption for this napkin. So to demonstrate that, I am just pouring in one single tissue paper here. You may see this napkin hardly had absorption capacity. This tissue is completely wet. The water is entirely spilling out. इसमें शायद इससे ज़्यादा पानी लेने की क्षमता नहीं है, बट एक महिला आमतौर पे 60 ml 80 ml तक ब्लीड करेगी. और आज के दिन जब हम सभी महिला घर से बाहर जा रहे हैं, अपने वर्क प्लेस पे हैं, अफोर्डेबिलिटी इज वन थिंग बट एक्सेसिबिलिटी इज अनदर. शायद हम ऐसे किसी मीटिंग में हो जहां घंटों तक हमें बैठना पड़े, शायद हम कहीं ट्रैवल कर रहे हो, एयरपोर्ट जा रहे हो, शायद हम कहीं ऐसे जगह पे हो जहां पे हमें इतनी अच्छी एनवायरनमेंट ना मिले कि हम नैपकिन चेंज करें. फिर उस जगह हम कैसे करेंगे? सो अगर इस नैपकिन की हम बात करें तो दोबारा हम इसी नैपकिन पे आते हैं और हम अब इस नैपकिन को लेयर बाय लेयर खोलते हैं. one is that we have noted is poor absorption capacity. But now further, the most unveiling part of this particular napkin is ahead. All the commercial brand of napkin, आप चाहे जो भी मार्केट से ब्रांड उठाना चाहे, उसमें 4 लेयर होते हैं. उसका सबसे पहला लेयर जो है, इस पर्टिकुलर नैपकिन के फर्स्ट लेयर को हम देखते हैं. मैंने ये फर्स्ट लेयर को रिमूव करा है. अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे बहुत सारे पोर्स बनाए गए हैं. द कॉन्सेप्ट रिमेन्स कि अगर ये पोरस है तो जब हम हम ब्लीड कर रहे होते हैं तो शरीर की काफ़ी गर्मी आ रही होती है. दैट वी नीड टू लिबरेट दैट हीट इनटू द एनवायरनमेंट सो दैट देयर इज नो रैशेज, इचिंग और एनी काइंड ऑफ सेलुलाइटिस विच इज हैपनिंग. तो वहाँ पे दाने नहीं आने चाहिए, गर्मी से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए परफोरेशन दी गई है. आमतौर पे अगर आप टच करके देखेंगे ये बहुत ही खुरदरा है. इट इज़ वेरी वेरी हार्श. और ये अगर मटेरियल आपको दिखाया जाए तो आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये कौन सी मटेरियल है. अगर मैंने थोड़ी स्ट्रेच करके आपको दिखाई है तो आप देख सकते हो इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक. ये देखिए करीब से अगर आप देखोगे तो ये प्लास्टिक का लेयर है. सो वन थिंग दैट वी आर वेयरिंग प्लास्टिक. बट देन ऑफ कोर्स लेट अस गेट इनटू द इंटेंट कि कितनी प्लास्टिक यूज हुई है. हम सेकेंड लेयर पे आते हैं. सेकेंड लेयर पे एक पतली सी पेपर की लेयर है विच इज कम्प्लीटली फाइन विद अस. बट देन यू सी अ प्रिंटिंग. आप इसमें एक डिजाइन देख सकते हो, एक कलर देख सकते हो. ब्लू कलर की डिजाइन है जो इस ब्रांड ने अपने मार्केट में हाईलाइट भी करा हुआ है. नाउ इफ यू वांट टू गेट एनी सॉर्ट ऑफ कलर और डिजाइन, ऑफ कोर्स यू नीड टू यूज अ डाई और केमिकल. दिस डाई इज कॉल्ड एज डायोक्सिन. आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि डायोक्सिन इज 900 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन आर्सेनिक. फिर ये डायोक्सिन हमें कैसे खतरा पहुंचाता है, ये डायोक्सिन हमारे बॉडी तक कैसे पहुंचता है? जैसे ही हम ब्लीड करते हैं, जैसे इस केस में हमने वाटर यूज करा है, आप देखोगे कि ये बिल्कुल गीला हो गया है. इस तरह से पानी गिर रहा है. सेम हमारी मेंस्ट्रुअल ब्लड से ये गीला होते ही यहाँ से ये केमिकल जो है डायोक्सिन डिस्चार्ज होना शुरू होगा.
इसकी एक कैपेबिलिटी है कि ये स्किन के ऊपरी सतह को, जिसको हम कहते हैं सबक्यूटेनियस, इससे ये अब्जॉर्ब हो सकता है उसी तरह से जिस तरह से लोशन, क्रीम या मॉइस्चराइजर अब्जॉर्ब होता है। जैसे ही ये सबक्यूटेनियस स्किन से अब्जॉर्ब होता है, ये अंदरूनी ऑर्गन की तरफ पहुंचता है, और अंदरूनी ऑर्गन में यूटेरस का सबसे फैगेंट जो है वो हमारे सर्विक्स है। किन महिलाओं को ज्यादा दिक्कत होगी? क्या सभी को खतरा? नहीं, सभी को खतरा नहीं है। उन महिलाओं को जिनको रिकरेंट इन्फेक्शन हो रखा है, उन महिलाओं को जिनको काफी बार अबॉर्शन हो रखा है, उन महिलाओं के लिए जिनके नॉर्मल डिलीवरी मल्टीपल हो रखे हैं, उन महिलाओं के लिए जिनके DNC जैसे मेथड्स करे गए हैं, तो उनके जो सर्विक्स होते हैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वो फ्रेजाइल होते हैं और बहुत ज़्यादा उसमें इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। सो अगर डायोक्सिन का हम बहुत यूज़ करें तो वो दिक्कत होता है। तो क्या हम आम महिलाएं जिनको कोई दिक्कत नहीं थी उन्हें खतरा नहीं है? फिर भी खतरा है, क्योंकि यू नेवर नो हाउ मच पेनिट्रेशन विल हैपन फॉर इंडिविजुअल, सो इट वेरीज ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ना अगर हम देखते हैं, एक 12 साल की महिला, कोई भी बच्ची अगर पीरियड्स शुरू होता है और वो 40, 45, 50 उम्र तक अगर नैपकिन यूज कर रही है, तो लगभग कहीं ना कहीं 25,000 नैपकिन्स का इस्तेमाल होता है। 25,000 नैपकिन में थोड़ा थोड़ा अगर डायोक्सिन होता है, तो आप सोचिए कि कितना डायोक्सिन हम यूज कर रहे हैं और कितना हमारा एक्सपोजर है इस डेडली केमिकल से। सो ये हो गया हमारा सेकेंड लेयर। नाउ कमिंग बैक टू आवर थर्ड लेयर, अगर हम थर्ड लेयर की बात करते हैं, तो थर्ड लेयर पे हमारा एक कॉटन पैड है, जिसमें हर नैपकिन में हम जेल यूज करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। बट यस, जेल का जो क्वांटिटी है, जेल का जो क्वालिटी है, जेल का जो बायोडिग्रेडेबिलिटी है, वो वैरी करता है नैपकिन टू नैपकिन, और उसी पे हम क्वालिटी वाली वर्ड यूज करते हैं। सो अगर इस जेल को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया पूरे तरीके से, तो आप देखेंगे ये जेल की क्वांटिटी है जो हमने एक्सट्रैक्ट करी है, लगभग पूरा ही मैंने निकाला है। इसको हमने ट्रे पे रखा था। जब हम महिलाएं इस नैपकिन को यूज करते हैं, तो हमारे बैठने पे इस पे एक दबाव आता है। जैसे ही दबाव आएगा तो देख सकते हैं आप क्या होता है, मतलब लीकेज। इट इज वेरी कॉमन फॉर अस टू स्टेन आवर क्लोथ्स, बेडशीट और एनी अदर थिंग दैट वी आर सिटिंग ऑन द सर्फेस, राइट। तो ये बहुत कॉमन होता है। हम अक्सर सोच क्या रहे होते हैं कि हमारी ब्लीडिंग शायद बहुत ज्यादा है, शायद हमने नैपकिन सही से नहीं लगाया, शायद हमारे साथ ये समस्याएं हैं, हम अपने आप को कसूरवार से ठहरा रहे होते हैं। बट एक्चुअल रियलिटी ये है कि ये नैपकिन पर्याप्त क्वांटिटी में, सफिशिएंट क्वांटिटी में जेल नहीं होती है यहाँ पे, और वो हम आगे भी आपको दिखाएंगे। आते हैं इसके चौथे लेयर पे, द लास्ट लेयर, द फोर्थ लेयर ऑफ अ कमर्शियल सैनिटरी नैपकिन। ये साउंड से आपको अंदाजा पड़ ही गया होगा कि यहाँ पे कौन सी मटेरियल यूज की गई है, बट हम फिर भी जूम करके आपको दिखाएंगे कि इसमें मटेरियल क्या यूज की गई है। और आप जैसे ही इस चीज को देखते हैं, आपको समझ में आता है कि यहाँ यूज की गई है बहुत ही गंदी सी तरीके की प्लास्टिक। गवर्नमेंट ने प्लास्टिक ये कहते हुए बैन कर दिया कि प्लास्टिक जो है सड़ता गलता नहीं, ये डिकम्पोज नहीं होता, तो काफी एनवायरमेंटल हैजर्ड होते हैं। बट अगर हम इस प्लास्टिक की बात करें, सो ऑलमोस्ट ये प्लास्टिक आप देखो, अपर लेयर एंड द लास्ट लेयर बोथ आर मेड ऑफ प्लास्टिक। बीच में ट्रैप्ड क्या है? हमारा मेंस्ट्रुअल ब्लड, विच इज फाउल स्मेलिंग, इन्फेक्शियस एंड ऑफ कोर्स इट इज हजार्डस। तो अगर हम इसको नैपकिन को देखें, तो आमतौर पे महिलाएं क्या करती हैं, जैसे ही हमारा पीरियड्स ओवर होता है या हमारी एक नैपकिन की यूज खत्म होती है, हम इसे उठाते हैं और गार्बेज बिन में फेंक देते हैं, ये सोचे बिना कि ये कैसे डिकम्पोज होगा। नाउ आज के दिन पे, आज की डेट पे अगर देखें, 140 करोड़ जनता है भारत में। अगर इसका पूरा प्रतिशत देखें कितनी महिलाएं हैं, 66 करोड़ फीमेल। अगर हम इसका सिर्फ मात्र 50% भी मान के चले, कहीं ना कहीं हर दिन 30-35 करोड़ महिलाएं इस तरह के नैपकिन को फेंक रही होती हैं। 30-35 करोड़ महिलाएं। आप ये सोचो कि कितना एनवायरमेंटल हैजर्ड हमारे द्वारा किया जा रहा है। एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि हम एनवायरनमेंट की इतनी नहीं सोचते, क्योंकि उसका सोचने के लिए गवर्नमेंट है, उसका सोचने के लिए एनजीओज है, उसके सोचने के लिए एनवायरमेंटल वॉलेंटियर्स है। बट अगर हम सिर्फ अपना भी सोचें, तो क्या ये सही मटेरियल है जो हम बेटियां यूज कर रहे हैं? क्या ये सही मटेरियल जो आप अपने बहन बेटी को देना चाहोगे? ऑफ कोर्स नॉट। समस्याएं कई सारी है। समस्या ये है कि ये प्लास्टिक है, समस्या ये है कि डायोक्सिन है जो कि डेंजरस है, डेडली है। समस्या ये है कि इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ही नाम मात्र है, इतनी सी जेल कितना कैपेसिटी होल्ड करेगी। समस्या ये भी है कि ये एक्सपेंसिव है। समाधान क्या है?
जब हम समस्याओं की बात कर ही रहे, एक समस्या जो बहुत कॉमन जिससे मैंने सेशन शुरू करा था कह के कि इचिंग, रैशेस। आप याद रखना, जब भी कोई इचिंग हो रही है, रैशेज हो रही है, या आपको कभी भी उस तरह की सेल्यूलाइटिस जो थोड़े थोड़े आपके रूट ऑफ द हेयर पे एक्ने जैसे चीज़ें आती हैं, अगर इस तरह की चीज़ें हो रही तो डेफिनेटली देयर इज अ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कैसे हुआ? किसी भी इन्फेक्शन को होने के लिए दो पर्याप्त एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, टू लाइकली एनवायरनमेंट। वन, बहुत सारी नमी होनी चाहिए, जो कि आप यहाँ ऑलरेडी देख रहे हो कि कितनी नमी है। ये जेल बिल्कुल होल्ड नहीं करता, एक एवरेज ब्लीडिंग भी होल्ड नहीं करता। और दूसरा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस लेयर में एक भी परफोरेशन नहीं है, सो ऑफ कोर्स हमारी वजाइना ब्रीथ नहीं कर रही। और अगर वजाइना ब्रीथ नहीं कर रही है, 5 दिन वो रूम बिल्कुल सील्ड रूम की तरह हो रखा होता है। सो 5 दिनों में आपने जो भी पूरे महीने की हाइजीन मेंटेन करी थी, दैट इज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड यू एंड अप विद अ सीवियर इचिंग, रैशेस, वजाइनाइटिस। और उस दौरान अगर आप अपने गाइनोकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस वजाइनाइटिस का जो अगला कदम होगा वो आपके लिए बहुत ही डेंजरस होगा। तो हम करें क्या? सो अब हम यहाँ पे आपको एक समाधान दिखाना चाहते हैं। वी हैव गॉट अ सॉल्यूशन फॉर यू। द सॉल्यूशन इज अगेन अ सैनिटरी नैपकिन, but this sanitary napkin is totally different from all the commercial brands available in the market. How it is different, I would like to demonstrate that in front of you. First and foremost, coming to this sanitary napkin, the brand is Aries. This is a brand that I personally use. This is a brand, being a doctor, I personally advocate, and this is the brand I would vouch for to any community of female. Why so? फर्स्ट एंड फोरमोस्ट, इस ब्रांड में हम 100% प्लास्टिक फ्री जा रहे हैं। इफ यू सी दिस ब्रांड, द आउटर रैपर इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल। वाई एल्यूमिनियम फॉइल? बिकॉज फॉर श्योर एल्यूमिनियम फॉइल हैव अ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। इसी के रीजन से हम इसे फूड ग्रेड मटेरियल में काउंट करते हैं और हम किचन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। बट इवन कंसिडरिंग कि कोई लड़की इसको बंद करना भूल जाए, तो कैसे हम इसके एश्योर करेंगे कि इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हुआ है? ये इनर पैक्ड है, अनलाइक द अदर कमर्शियल ब्रांड विच आई शोड यू। अगर इनर पैक को आप देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, ये वैक्यूम सील्ड होती है। इसमें जरा सा भी स्कोप नहीं है कि कहीं से ओपनिंग हो। सो इफ यू रियली वांट टू ओपन दिस नैपकिन, यू हैव टू टीयर इट ऑफ। बट ये तो बहुत छोटे से पैकेजिंग की एडवांटेज आप कह सकते हो। लेट्स कम टू द गाइनोकोलॉजिकल कंसर्न्स, और इसमें मेडिकल एडवांटेज क्या है वो दिखाते हैं हम। सो अगेन सेकेंड कंडीशन हम वही करते हैं, फिर से दोबारा इस नैपकिन को एक ट्रे पे प्लेस करते हैं, कंसिडरिंग कि एक लड़की ब्लीड करने वाली है। एवरेज ब्लीडिंग हमारी 60 ml। फिर से सेम सिनेरियो हम क्रिएट करते हैं। सो मैंने फिर से यहाँ पे एक सिरिंज में 25 ml वाटर लिया है। जब लड़की ब्लीड कर रही होगी तो इस तरह से बूंद 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 करके सेंटर पोजीशन से होते हुए सोक करते करते वो फैलता चला जाएगा और कहीं ना कहीं इस तरह से सोक होगा। सो मैंने यहाँ कलर्ड वाटर लिया है टू डेमोन्स्ट्रेट यू वेल। हेलो रितु जी, हाय धीरेन्द्र जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग नीलम जी। So I hope I will do justice to this demonstration. This is my second syringe which is filled with 25 ml of water. So एक लड़की यहाँ पे 50 ml ब्लीड करती है। साधारण तौर पे मैंने कहा था कि संभावना है कि एक लड़की 80 ml तक ब्लीड कर सकती है। तो हमने कमर्शियल ब्रांड में सिर्फ 50 ml किया था और हमने देखा उसकी और कैपेसिटी नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं कि 75 ml के कैपेसिटी के साथ ये एरीज नैपकिन कैसे रिएक्ट करता है। सो 50 ml इज ऑलरेडी बीन टेकन प्लेस। अब ये मेरा थर्ड सिरिंज 25 ml का, और यहाँ पे हमने इसको डाल दिया। दिस इज हाउ वी गॉट टू ब्लीड। ज्यादातर आप लोगों ने सुना होगा, गाइनोकोलॉजिस्ट भी ये कहते हैं आमतौर पे कि आप अपने सैनिटरी नैपकिन ना बहुत फ्रीक्वेंट चेंज करें। क्या कारण है? कारण ये है कि सैनिटरी नैपकिन ना चेंज करें तो हमें वहां पे इचिंग, रैशेस और सारे प्रॉब्लम होते हैं। रीजन सेम था, एक्सेस ऑफ मॉइस्चराइजर, एंड द सेकेंड थिंग, नो एक्सेस ऑफ एयर, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं थी। तो हमने एरीज में क्या डिफरेंशिएटर करा है? सो अब हम देखते हैं 75 ml वाटर के साथ एरीज कैसे बिहेव करती है। तो सिमिलर टेस्टिंग थिंग, हमने यहाँ 75 ml डाला है। ऑफ कोर्स यू कांट फील द टेक्सचर, बट आई कैन वाउच फॉर ये बहुत ही स्मूथ है। और अगर हम इसको दिखाना चाहें कि इसमें लिक्विड सोकिंग पावर कितनी है, तो ये लिया मैंने एक टिश्यू पेपर और मैंने एक सिरिंज रोल करा। मैंने इसको काफ़ी हार्ड प्रेस करके देखा, बट यू सी द एंटायर टिश्यू पेपर इज ड्राई।
पूरी टिश्यू पेपर ड्राई है. One is, yes, of course, for a girl it matters how is the absorption, but there are things beyond it which we need to consider. क्या ये हमें रैशेस इचिंग से बचाएगा? क्या ये हमें सही तरह से एब्जॉर्प्शन देगा? क्या ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होल्ड करता है? बहुत सारे सवाल है. सो हम इसको खोल के देखेंगे. जब हम एरीज की बात करते हैं, दिस पर्टिकुलर ब्रांड ये वैक्यूम प्रेस्ड है, इसलिए काफ़ी सारे लेयर्स इसके जो है काफ़ी क्लोजली अटैच्ड एडहेर्ड है एक दूसरे में. और यहाँ पे अनलाइकली द कमर्शियल ब्रांड वी हैव 8 लेयर्स. तो कमर्शियल ब्रांड में मैंने 4 लेयर डेमोन्स्ट्रेट किया था, यहाँ पे 8 लेयर्स है. वी आर गोइंग 1 by 1 टू ईच लेयर. नाउ द फर्स्ट लेयर, ये है हमारा फर्स्ट लेयर. फर्स्ट लेयर बहुत क्रूशियल होता है बिकॉज दिस इज द लेयर विच विल बी in contact with your vagina, and vagina is the most delicate area for any female. अगर हम इसकी टेक्सचर देखें, आप देख सकते हो ये कितनी ड्राई है, बिल्कुल ड्राई है, नो वाटर इन इट, बिल्कुल पोरस है, सो दैट ऑक्सीजन परमिएबिलिटी इज देयर. और अगर हम इसकी मटेरियल की बात करें, सो इट इज मेड ऑफ 85% ऑफ कॉटन एंड 15% ऑफ सिल्क. सिल्क इसलिए मिलाया गया है ताकि ये थोड़ी सी फर्म हो और हमारे वजन बढ़ने पे ये फट ना जाए. सो अगर हम इसको टीयर ऑफ करेंगे, आप देख सकते हो रेशे निकल रहे हैं, इतनी ड्राई है कि रेशे निकल रहे हैं और बहुत आसानी से इसको आप अलग अलग कर सकते हो. सो दिस इज 100% बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कॉटन लेयर. कमिंग टू द इंटरनल लेयर्स, यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स है. ये छोटा सा जो सेकेंड लेयर है, इसको हम कहते हैं एंटीबैक्टीरियल चेप. एंटीबैक्टीरियल चेप विच वर्क्स ऑन अ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव ऑक्सीजन एंड नेगेटिव आयन. ये आपको थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करके बताया जाएगा. फॉर द टाइम बीइंग आई एम कीपिंग इट असाइड. कमिंग टू द इनर लेयर्स, सो यू सी अ ब्यूटिफुली रैप्ड पाउच विच कंटेन्स द जेल. ना ये जो लेयर है, ये सारे लेयर मल्टीपल लेयर्स है, ऑलमोस्ट लाइक इसमें 6 सतह है, 6 लेयर्स हैं जो 1 by 1 खोल के दिखाया जाएगा. और इसमें भी जेल यूज करा गया है. सारे कमर्शियल ब्रांड्स में भी जेल होते हैं, बट इसका जेल थोड़ा डिफरेंट और यूनिक है. इसमें अंतर ये है कि ये जेल जो है 100% बायोडिग्रेडेबल है. इट इज मेड आउट ऑफ बनाना प्लांट एक्सट्रैक्ट. अगर हम इस जेल की बात करें, ये जेल बायोडिग्रेडेबल के साथ साथ बहुत ही हाई एब्जॉर्प्शन पावर रखता है. ये बनाना प्लांट एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है. अगर इसको हम किसी पेड़ पौधे में डाल दें तो ये खाद का काम करेगा, बिल्कुल नेचुरल है, ऑर्गेनिक है. और अगर हम इसको यूटिलाइज करना चाहें तो आपने काफ़ी लोगों ने स्पा सेंटर्स पे आपने एंजॉय करी होगी क्रिस्टल स्पाज, क्रिस्टल मसाज. काफ़ी लोग फुट केयर एंड पेडिक्योर मैनिक्योर करवाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा क्रिस्टल स्पाज आर वेरी वेरी पॉपुलर. रीजन बीइंग दिस क्रिस्टल हैव अ पावर ऑफ पॉलिशिंग योर स्किन. इट इज़ वेरी वेरी स्किन फ्रेंडली. ये सेम क्रिस्टल जब हम यूज़ करते हैं, हमारा यहाँ पर्पस अलग है, हम एब्जॉर्प्शन के लिए करते हैं. इट इज़ स्टार्ची इन नेचर. स्टार्च, जैसे कि एक अगर एग्जाम्पल देना हो तो आप लोगों ने देखा होगा साबूदाना. साबूदाना को जैसे ही आप भिगोगे, एक मुट्ठी साबूदाना कल को एक पूरा फुल बाउल हो जाएगा और पूरा वाटर गायब होगा. तो अगर हम इसकी एग्जांपल आपको देना चाहें तो ये ऑलमोस्ट लाइक पूरा जो जेल है हमारा, हम एक साथ इकट्ठा करते हैं. और आप अभी देखोगे ये है एक नैपकिन से निकला हुआ जेल. इस ग्लास में मैंने ऑलमोस्ट, अगर आप देखोगे ग्लास में, तो ऑलमोस्ट अराउंड मोर देन 100 ml वाटर लिया है. ये हाफ फिल्ड ग्लास है जो आप देख सकते हो. एक लड़की साधारण तौर पे सिर्फ 80 ml तक ही ब्लीड करेगी, क्योंकि अगर 80 ml का बैरियर पार हुआ, देन यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट इज डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग एंड दैट इज द कंडीशन यू मस्ट विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट. बट हम फिर भी एक कंडीशन लेते हैं कि मान के चलो आपके मेरे जैसी ऑफिस वर्किंग लेडी है, नैपकिन चेंज नहीं कर सकती, क्या हमें वो सारी समस्याएं फेस करनी होगी एरीज के साथ भी? तो उसका जवाब बस हम इस सिंपल तरीके से देंगे. इस 100 ml से ज़्यादा पानी में हमने जेल को डाल दिया है. लेट इट सेटल फॉर अ मिनट. By that time, I'll just explain you the other layer. So I'm just keeping it aside. जो बाकी के हमारे layers हैं, आप देख सकते हो multiple layers of cotton being used. These cottons are neither bleached. These cottons are neither treatment oriented. Pure cotton है जो हम use करते हैं for any surgical procedures. और ये सारे breathe through material है. हर एक layer porous है. तो आप देख सकते हो इतनी dry है. 100% biodegradable. Now the last layer is really very crucial.
जब भी हम लास्ट लेयर की बात करते हैं, काफ़ी सारी महिलाएं मेरे पास आती हैं, कहती हैं डॉक्टर कंचन हमें एक समस्या बहुत ज़्यादा आती है, और वो समस्या ये है कि कोई भी कमर्शियल ब्रांड, इवन द बेस्ट ऑफ द अवेलेबल ब्रांड, हम जब लगाते हैं अपने पैंटीज पे तो वो चिपकी हुई रह जाती है। एंड व्हेन यू वांट टू टियर इट ऑफ कोर्स वो पूरा ब्लड सोक्ड होता है, वो अलग एक हमें हाइजीन कंसर्न आती है, और जब हम उसको हटाना भी चाहें तो वो चिपकी हुई रह जाती है। बिकॉज प्रॉबेबली द रीजन इज कि उसमें जो हम ग्लू यूज कर रहे हैं वो कमर्शियल ग्लूज है, जो आप घर में अपने DIY करने के लिए जो ग्लूज यूज कर रहे हैं। बट यहाँ एरीज में हमने उसका भी ध्यान रखा है। यहाँ जो ग्लू यूज हो रही है वो भी प्लांट एक्सट्रैक्ट से यूज की गई है, जो कि टोटली स्किन फ्रेंडली है। और अगर हम लास्ट लेयर की बात करते हैं तो आपको दिखाना चाहेंगे कि इस लास्ट लेयर में हमने काफी डिफ्रेंसिएशन लाया है। दिस इज कॉल्ड एज रिलीज पेपर। तो अगर आप देखेंगे, एज द नेम सजेस्ट, रिलीज मतलब किसी भी चीज को हटाना, छोड़ देना। तो सेम यहाँ पे रिलीज पेपर का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी बॉडी से मेंस्ट्रुएशन के माध्यम से जो भी गर्मी निकल रही है उसे हमें एनवायरनमेंट में लूज आउट करना है, हमें वजाइना को ब्रीथ करने देना है। तो यहाँ पे ये जो पेपर है साधारण तौर पे आपको दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हो कितनी आसानी से हम टीयर ऑफ कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल 100% बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। सो आप देख सकते हैं पूरी सतह में कहीं पे भी हमने कोई कलर यूज नहीं करा है, कहीं पे भी प्लास्टिक यूज नहीं करा है, 100% बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। बट वॉट रियली फैसिनेट्स मी अबाउट दिस नैपकिन इज द हाई इंटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस जेल, एंड इफ आई रियली नीड टू शो यू दैट एब्जॉर्प्शन, दिस इज इट। हमने पहले ही 75 ml वाटर यूज करी थी और फिर हमने इसमें डाला है 100 ml प्लस वाटर। सो इन ओवरऑल इट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 200 ml ऑफ वाटर, विच इन a very unlikely case also it's not possible for any female to bleed. But then very common question strikes our mind, और वो क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर कंचन, गाइनोकोलॉजिस्ट कहते हैं नैपकिन चेंज करो, बहुत ज़रूरी है वरना इन्फेक्शन होगा। क्यों कहते थे गाइनोकोलॉजिस्ट ये बात? इसलिए क्योंकि आपके जो कमर्शियल ब्रांड यूज करा है आपने, और मैंने भी काफी सालों तक मैंने भी, तो जो हमने कमर्शियल ब्रांड यूज करा है उसमें कोई भी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं थी, और जैसे ही वो गीला होता था ना ही वहाँ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी थी, ना ही वहाँ एयर का पैसेज था, तो हमें साधारण तौर पे वजाइनाइटिस का बहुत खतरा होता था। दैट इज वाई आवर गायनोकोलॉजिस्ट एडवोकेटेड इट टू ब्रिंग इन अ कॉमन सोल्यूशन। दिस इज द एरीज नैपकिन। और अगर आप इसकी जेल का वॉल्यूम देखें तो बस मैंने अभी इसी ट्रे पे इस जेल को निकाल दिया है, और आप देख सकते हैं कि जहां हमारी दूसरे ब्रांड का जेल सिर्फ इतना था, जो कमर्शियल ब्रांड जो बेस्ट अवेलेबल है, वन ऑफ द प्रीमियम प्राइस ब्रांड, उसका जेल सिर्फ इतना था और एरीज का जेल इतना है। बट आर वी हियर वाउचिंग फॉर जेल? नो। फॉर अ मैटर, मेरा कोई भी इंटेंशन जेल के लिए वाउच करना नहीं है, बट आई एम ब्रिंगिंग योर फोकस टू अ कॉमन थिंग। अगर जेल इतना कम है, वी नीड टू चेंज इट वेरी फ्रिक्वेंटली, बट वी आर नॉट इन अ पोजिशन। समवेयर affordability is not there. Sometimes we do not have a hygienic place to do that. Sometimes we are sitting in such an environment probably that doesn't advocate you to change. तो बहुत सारे रीजन सबके पास है, तो क्या हम उस दौर पे क्या हम एक कॉमन चीज रख सकते हैं जहाँ 24 आवर्स वी आर अश्योर्ड? बट येस, व्हेन यू टॉक अबाउट द इन्फेक्शन थिंग, यहाँ एरीज में एक बहुत ही प्यारा सी चीज दी गई है, वो है एंटीबैक्टीरियल चिप। नाउ you see it is made of it is appearing as a green color, but a very big disclaimer for company side, it is not dyed, it is not painted, no chemicals are being used. ये भी हर्बल चीज़ों को मिला के बनाई गई है, और जिन चीज़ों का प्रयोग किया गया है उसका नेचुरल कलर है ये। जब हम इस चिप की बात करते हैं, ये भी बिल्कुल पोरस है, आप देख सकते हो ये भी बिल्कुल पोरस है। और इस चिप में जो हमने पेटेंट करा हुआ है एक कॉन्सेप्ट, आप चाहो तो यूट्यूब पे देख सकते हैं, जो हमारे एरीज के पैकेट पे भी है, एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन। ब्रेकिंग द कॉन्सेप्ट, एक्टिव ऑक्सीजन का मतलब क्या है? एक्टिव ऑक्सीजन का मतलब ये है कि द वजाइना नीड टू ब्रीथ। सिर्फ नाक से सांस लेके हम अपने मेंस्ट्रुअल जर्नी को स्मूथ नहीं बना सकते हैं। द वजाइनल स्किन हैव टू ब्रीथ, एंड फॉर दैट वी नीड टू एंश्योर द परमिएबिलिटी थ्रू द वेरियस लेयर्स। हमने सारे लेयर कॉटन के बने हैं, ब्रीथ फ्री मटेरियल करे हैं, बट दिस पर्टिकुलर चिप हैव अ कैपेबिलिटी टू ट्रिगर योर ऑक्सीजन लेवल। जैसे अभी कोविड के टाइम पे सबने काफ़ी सुना और सबने काफ़ी पढ़ा है, SpO2 लेवल हाई होना चाहिए, 93 के अबव होना चाहिए। वैसे ही वजाइनल ब्रीदिंग के दौरान हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑक्सीजन लेवल बहुत हाई होनी चाहिए। तो दिस इज वन थिंग दैट वी आर डूइंग थ्रू दिस एंटीबैक्टीरियल चिप। सेकेंड थिंग, नेगेटिव आयन।
हर इंसान के बॉडी में दो तरह के आयन पाए जाते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। किसी भी चीज़ का बैलेंस आउट होना बहुत ज़रूरी है। जिस दौरान हमारा डिस्चार्ज हो रहा होता है, हम ब्लीड कर रहे होते हैं, पॉजिटिव आयन की मात्रा बढ़ जाती है। इस तरह से तराजू इस तरफ पलड़ा भारी हो जाता है। पॉजिटिव आयन के बढ़ते ही क्या होगा, फैटिक, लेथर्जी, पेनफुल सिचुएशन जैसे कि डिस्मेनोरिया होता है। तो हमें पॉजिटिव आयन को बैलेंस करने के लिए नेगेटिव आयन का भी संतुलन बनाना होता है। हम कहाँ से लाए, वो बॉडी नहीं कर सकती बिकॉज यू आर ऑलरेडी ब्लीडिंग, है ना। तो हमने इस चिप से करा है। जैसे ही ये चिप किसी भी लिक्विड के कांटेक्ट में आती है, ये एक्टिवेट होती है एंड द नेगेटिव आयन स्टार्ट डिस्चार्जिंग। इस समय मैंने एक सिंपल वाटर का ही इस्तेमाल करा, मैंने इसको पानी में भिगोया था। बट वाइल वी आर मेंस्ट्रुएटिंग, उस टाइम पे हमारी जो भी ब्लीडिंग हो रही है उससे ये गीला रहेगा। बट द क्वेश्चन इज, ये कितने देर एक्टिव रहता है। ये कैपेसिटी है इसकी 24 आवर्स एक्टिवेट होने की। जितना ज़्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रहा है उतने ज़्यादा नेगेटिव आयन डिस्चार्ज होंगे एंड इट विल मेंटेन योर एनर्जी हाई। सो आप कह सकते हो इस चिप के होने पे आपके वो 5 दिन भी बाकी के 20 दिन के बराबर होंगे। सो यू विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट व्हेन यू आर मेंस्ट्रुएटिंग एंड व्हेन यू आर नॉट मेंस्ट्रुएटिंग। द एनर्जी रिमेन्स इक्वली हाई। सो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ दिस चिप।